Yeah, we'll begin. जिन्होंने आज मॉर्निंग का भागवतम क्लास नहीं सुना है, सो प्लीज डू लिसन, क्योंकि आज की जो क्लास थी वो बहुत इम्पोर्टेंट वर्स था। वो इट इज रिगार्डिंग द स्पिरिचुअल मास्टर। मैं लिटिल बिट अराउंड दैट, तो मैंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के क्वेश्चन आंसर्स भी उसमें डिस्कस किए थे। तो आप लोग प्लीज वो सुनिएगा, आधे घंटे का ही क्लास है। सो इफ यू आर एबल टू लिसन, सो प्लीज गो टू द यूट्यूब, और द क्लास का लिंक मैंने खैर ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। तो आप प्लीज वो क्लास सुनिए ताकि आपका वर्ड्स मिस ना हो जाए। So please go through the recording one. Astha, you missed today a very important class. So if you have not heard, so please go through the link and listen it carefully. Okay. So class आप जरूर सुनिएगा एक बार, और मे बी वो परपट भी आप जरूर पढ़िए। Today we discussed 1 to 31 or 32. I don't remember exact verse number. तो आप लोग देख सकते हैं, जस्ट इन हाफ एन आवर क्लास, so just please listen, or maybe you just go through the purport of Srila Prabhupada. Okay, ताकि कल का जो हम नेक्स्ट सेशन भागवतम का होगा तो आप अच्छे से समझ सकें। बट इट वाज a very important verse today morning. So उस पे और डिस्कशन हो सकता था, बट यू पीपल वर नॉट देयर, सो इट वाज नॉट, कोई डिस्कशन हुआ नहीं उस पे। बट आई वांटेड टू हैव डिस्कशन ऑन दैट टॉपिक, but you people were not there, so I didn't discuss much, but I spoke a bit. So you all can please go through the verse or maybe the class. Okay, so we'll read today's verse. सर्वभूतस्थितं यो मम भजति एकात्वम् अस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मम भजति एकत्वम् अस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं सुयोमं भजति एकात्वम् अस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। Parth, read the shloka. सर्वभूतास्थितं यो मां भजति एकत्वमस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। Next, Madhuri. सर्वभूतास्थितं यो मम भजते एकत्वम् आस्थिता सर्ववर्तमानोऽपि सा योगमाया वर्तते। Okay, next. सर्वभूता स्थित्यं यो मम भजते एत्वम् अस्थितः सर्वदा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। Next. सर्वभूतस्थितं यो मां भजते एकत्वम् अस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आस्था पढ़ो। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते एकत्वम् अस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। Okay, translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. Such a yogi who engages in the worshipful service of the super soul, knowing that I and the super soul are one, remains always in me in all circumstances. यहाँ पे ये जो I use हुआ है, ये किसके लिए use हुआ है? That is used for supreme personality of Godhead. ठीक है? There is no difference between I and the super soul, because Krishna, we studied in the Bhagavatam also, Krishna expand himself into the super soul in and enters into the material manifestation. कि material world में अपने आप को super soul की तरह expand करते हैं, और हर जगह मतलब he enters into each and every atom, neutron, proton, whatever you say, he enters into everything. So there is no difference between I and super soul. The only difference is Krishna in original form is two-handed form, and the super soul is a Shirodakshai Vishnu who is in the four-handed form. But they are both the same. So in that way there is no difference. Okay. तो क्या बोला है कि सच अ योगी, अब yesterday we studied about one who is a devotee of Krishna. He sees Krishna everywhere, in everything, and that's how the Krishna is not lost to him, you know, क्योंकि who is there? हरे कृष्णा आरती माता जी, आपको बड़े दिनों बाद देख रहे हैं हम, हरि बोल। Thank you so much for joining. It says, such a yogi who engages in the worshipful service of the super soul, knowing that I and the super soul are one, remain always in me in all circumstances. तो कल भी यही पढ़ रहे थे हम लोग, जो डिवोटी है वो भगवान को हर चीज में देखता है, इसलिए भगवान कभी भी उसको लॉस्ट नहीं होते। That means he is all the time conscious of Krishna. तो जो व्यक्ति पूरी तरह भगवान के प्रति कॉन्शियस है, how that person can be
can forget Krishna, never. You know, he can always can see Krishna. Means that person is actually in love with Krishna. Who else next joined today? Hare Krishna, Namita Mataji. Thank you for joining. Purport, I will read the purport and then I'll explain the more. Okay. A yogi who is practicing meditation on the super soul sees within himself the plenary portion of Krishna as Vishnu, with four hands holding conch shell, wheel, club and lotus flower. जैसे मैंने कहा, हमारे हृदय में जो है परमात्मा स्वरूप किनका है? शिरोदक्षय विष्णु है. यहाँ पे माँ विष्णु है, गर्भोदक्षय विष्णु है, करणोदक्षय विष्णु है और शिरोदक्षय विष्णु है. So the which Vishnu is in our heart, that is शिरोदक्षय विष्णु. ठीक है, विष्णु के चार हाथ होते हैं. इन फोर हैंड he was holding conch shell, wheel, club and lotus flower. The yogi should know that Vishnu is not different from Krishna. Krishna in this form of super soul is situated in everyone's heart. तो जो योगी है वो ये जानता है कि भगवान कृष्ण और जो विष्णु है हृदय में परमात्मा, उनमें अंतर कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है? विष्णु इज एन एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा. ये हमने पढ़ा था ना कि विष्णु तत्व और जीव तत्व में अंतर पढ़ा था हम लोगों ने भागवतम में. तो विष्णु तत्व जितने भी हैं दे आर इक्वल इन पावर, तो देयर इज नो डिफरेंस इन देम. ठीक है, इन वन वे दे आर ऑल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. लाइक द नरसिम्हा देवी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ही इज आल्सो एन एक्सपेंशन ऑफ इनकारनेशन ऑफ कृष्णा. देन लॉर्ड रामचंद्र इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, वो भी भगवान के ही इनकारनेशन है. देन वराह देवी इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड बिकॉज वो भी उनकी इनकारनेशन है. नारायण इज एन एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा, so he is also an supreme personality of Godhead because they all are Vishnu tattvas, means the Krishna tattva you can say. So they are all Krishnas in different forms according to time, place and circumstances. ठीक है, जब धरती को बिल्कुल धरातल के नीचे चली गई थी, अब जो आपको पता होगा जो सुअर हैं वो कीचड़ में जाते हैं, they just go into the कीचड़ and dirty things. So उस समय भगवान ने कौन सा रूप धारण किया था? वराहदेव का. ठीक है, that was the exact form to have at that time, क्योंकि he was into the pig form, pig का ही फॉर्म था उस समय. So वो धरातल के बिल्कुल नीचे गए और अपने टस्क पे धरती को उठा के ऊपर लाए थे. तो उस समय वैसा रूप बहुत जरूरी था. एंड देन जब देवताओं और असुरों में वो हुआ था, व्हाट वी कॉल इट, चर्निंग द ओशन, जिसमें टग ऑफ वॉर वन कैन से, जब वो हुआ था लाइक दे वर चर्निंग द ओशन, तो उस समय भगवान ने कूर्म अवतार लिया था. तो दैट इज जो मंदाकिनी पर्वत था उसके नीचे टू बैलेंस ही टुक दैट फॉर्म. सो देन मोहिनी अवतार ही टुक. सो देन नरसिम्हा देव टू लाइक, अब ब्रह्मा जी ने बूंद दिया था हिरण्यकश्यपु को, तो अब उन चीजों को सबको कैंसिल आउट करने के लिए क्या फॉर्म बनना था? वह हाफ मैन एंड हाफ लॉयन, क्योंकि बोला था ना तो जानवर से ना मरूं, इंसान से ना मरूं. तो he took a form of half man and lion. So that time उस समय वो फॉर्म ज्यादा जरूरी था. So in that way, according to time plus circumstances, Lord has come and taken different forms, but they all are supreme personality of Godhead. ठीक है, तो इसलिए जो योगी होता है वो समझ पाता है कि ये जो परमात्मा है और भगवान में कोई अंतर, कृष्ण में कोई अंतर नहीं है. बट द ओनली डिफरेंस इज ही इज टू हैंडेड, कृष्ण इज टू हैंडेड एंड द विष्णु इज फोर हैंडेड फॉर्म. ठीक है, सो आगे भी लिखा है और ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, दैट सुपर सोल इज सिचुएटेड इन एवरीवनस हार्ट. व्हाई सुपर सोल accompanies a jiva? To help him, remind him that you are my अंशा, आप मेरे पार्ट एंड पार्सल, और आपका कर्तव्य मुझे सेवा करना है. तो चलो भगवत धाम चलते हैं, भौतिक जगत की सेवा मत करो. ठीक है, तो ऐसा होता है. So that's how the super soul accompanies us in every form. हर जीव, हर and every time, whatever the form we take, Krishna accompanies us in the form of super soul. ठीक है, so next यहाँ पे है, it is said, furthermore there is no difference between innumerable super souls present in the innumerable hearts of living entity. अब कोई बोल सकता है मेरे अंदर भी सुपर सोल हैं, आप सबके अंदर भी सुपर सोल हैं. तो सुपर सोल तो सबके अंदर है, मतलब सब अलग अलग सुपर सोल हैं क्या? क्योंकि मैं तो अलग हूँ, आई एम इंडिविजुअल पर्सन, आई एम नंदप्रिया देवीदासी अकॉर्डिंग टू द नेम गिवन टू मी. मे बी अब सोल का नाम तो पता नहीं मुझे. अब मेरा नाम तो ये है. ठीक है, सो देयर इज एन सुपर सोल इन भाविका, इन पार्थ, इन पूजा, इन नविता, इन आरती, इन आस्था. वी ऑल हैव द सुपर सोल. मैं क्या बोला, आप सबकी सुपर सोल अलग अलग है? नो, there are many living entities, innumerable living entities. It's not just we human beings. There are many like even the matter, antimatter, whatever it is, super soul present in everything. In the stone also, in the mountain also, super soul is present. तो क्या अलग अलग super soul है? No. Obviously soul, ये limitation आ जाती है हमारी और परमात्मा में. अब ये limitation है
ठीक है। वी आर ऑल्सो बिकॉज वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड, तो हम में भी उनकी गुण है। अब हम लोग अपने माता पिता से उनकी क्वालिटीज इनहेरिट करते हैं ना, हमारा फेस रिसेंबल करता है अपने माता पिता से, या कुछ उनके गुण हम में आते हैं। सो सर्टेन थिंग वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। कई तो डिजीज बीमारियां अपने पेरेंट्स की इनहेरिट करते हैं, मतलब इट्स नॉट, आई एम जस्ट जोकिंग, बट वी इनहेरिट समथिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स, इजंट इट? तो हम भी किन के अंश हैं? भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल है ना भगवान के। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि आप सब मेरे ही अंश हो। तो जब भगवान के पार्ट एंड पार्सल, तो उनके गुण हम में भी हैं। ही सच्चित आनंद है, हम भी सच्चित आनंद है, मगर क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज वी आर वेरी लेस। जैसे समुद्र, समुद्र की बूंद बताई जाए तो, ठीक है, तो क्वांटिटी हमें है। अब भगवान भगवत गीता में अर्जुन को भी कहते हैं, ठीक है। अर्जुन ने बोल, जब चौथा अध्याय हमने पढ़ा था, उसके पहले ही श्लोका में अर्जुन ने बोला था कि सॉरी, भगवान ने बोला था कि ये भगवत गीता मैं अभी तुम्हें नहीं सुना रहा हूँ पहली बार, मैंने सबसे पहले किसको सुनाई थी? कई मिलियन करोड़ साल पहले मैंने ये सूर्यदेव विवस्वान को सुनाई थी। तो अर्जुन कहते हैं आप तो यहाँ पे प्रेजेंट हो, तो उस समय कैसे आगे? सूर्यदेव तो आपसे बहुत बड़े हैं एज में। तो कृष्ण से भाई यही तो थोड़ा इल्यूजन है माया का, आपको पता नहीं ना चल रहा। यू जस्ट नो अबाउट योर बॉडी, बट आई नो पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ एवरीबडी। मैं सबका आगे पीछे का सब कुछ जानता हूँ, और वो भी सिर्फ अपने बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में भी कहता है। भगवान ने कहा तूने और मैंने बहुत सारे जन्म लिए हैं। You have taken many births, I have also taken many births. But thing is, you are forgetful of your births, but I remember each and everything. कि मुझे सब पता है कि मैंने कितने जन्म लिए। And it's not just about me, I know about all the living entities. So भगवान सिर्फ, हमें तो अपने कल का नहीं पता कि कल क्या किया होगा हमने, मतलब इफ वी जस्ट रिमेम्बर, ट्राई टू मेमोराइज, हमें अपने बचपन की भी इतनी चीजें, बातें नहीं याद होंगी, है ना। अभी इसी जन्म की बात कर लें तो हमें अपने बचपन का भी इतना कुछ याद नहीं होगा, स्पेशली व्हेन यू आर 1 or 2 3 years old। जब वो 1 2 3 साल के होते हैं, उस टाइम की तो कोई भी मेमोरी हमारे दिमाग में नहीं होती, बिकॉज वी आर वेरी यंग, बहुत छोटे होते हैं हम उस टाइम पे। जब हम 4 5 साल के होते, शायद उसका कुछ ना कुछ धुंधला याद हो दिमाग में, मुझे तो नहीं याद है, आई डोंट रिमेम्बर मच। शायद उस समय का कुछ याद हो हमें, मगर जब हम 1 2 साल के थे, हमें तो वो भी उतना भी याद नहीं होगा। सो व्हाट टू से ऑफ रिमेम्बरिंग आवर पास्ट लाइफ्स, वी आर नॉट रिमेम्बरिंग एनीथिंग, बट कृष्णा knows everything and it's not about the past। अब यहाँ पे बात आ रही, यही तो है ना, it's a limit on the jiva that we don't have much knowledge as Krishna, you know। एंड कृष्णा बीइंग इन सुपर सोल, अब ये बोले कि अलग अलग सुपर सोल है, नहीं, सुपर सोल एक है, मगर बिकॉज कृष्णा एक्सपैंड हिमसेल्फ इनटू मेनी लिविंग एंटिटीज। सो कृष्णा एक समय में हर जीवात्मा के हृदय में, मेरे में भी, आपके में भी, अभी एक टाइम पे कृष्णा इज इन एवरीवेयर। लाइक कृष्णा, ही एक्सपेंडेड हिमसेल्फ इनटू, व्हेन ही गॉट मैरिड टू 16,108 वाइफ्स। कृष्णा की कितनी पत्नी है? 16,108 ना। एंड कृष्णा एक समय में हर एक पत्नी के साथ में होते थे। At one point he is here also, he is there also. So that is Krishna's power, we can't do that thing. So इसी प्रकार से भगवान जो है वो हर जीवात्मा के हृदय में एक समय में हो सकते हैं। He knows about everyone, ठीक है। So आप बोलोगे इतना कैसे याद रखते हैं? बिकॉज भगवान है हमें नहीं याद रहता, उनको याद रहता है, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ लॉर्ड, दैट इज देयर। आई रिमेम्बर, कल आस्था बता रही थी, तो हम बता रहे थे आस्था, दैट व्हेन प्रभुपाद वाज ऑन ए फ्लाइट, सो प्रभुपाद जब पहली बार गए थे तो बता रहे थे कि ये सारा ऊपर से शहर ऐसे छोटी छोटी माचिस की डिब्बियां दिख रही हैं। तो देन प्रभुपाद सेज कि कृष्णा को कैसा दिख रहा होगा? So कृष्णा ऑन द अपसाइड, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल ही छोटे छोटे दिख रहे होंगे। तो वी आर लाइक वेरी माइन्यूट। तो हमारा जो अगर साइज भी देखा जाए भगवत गीता के अनुसार, सो व्हाट इज द साइज ऑफ अ सोल? 1 टिप ऑफ द, ये जो जैसे हमारे एक बाल है, इसका जो टिप होता है, इसको अगर आप 10,000 भागों में विभाजित कर दो, इफ यू डिवाइड इट इनटू 10,000 पार्ट्स, सो वी बिकम वेरी इनसिग्निफिकेंट। वो साइज है हमारा, ठीक है। Yes, Priya Mataji ने share किया था. Okay, I just forgot it. So that is there. So it was, that is the size. So we are very insignificant in front of Lord. So Lord knows everything, you know, and He expand Himself into many forms, but we cannot. So ये हमारी limitation है, ठीक है. The yogi in furthermore, there is no difference, nor is there a difference between Krishna conscious person always engaged in transcendental loving service of Krishna and a perfect yogi engaged in meditation on the super soul. तो जो एक perfect yogi है, या टॉप मोस्ट योगी किसको कहा जाता है? जो कृष्णा कॉन्शियस, बिकॉज टॉप मोस्ट योगा सिस्टम कौन सा है? भक्ति योगा। सो टॉप मोस्ट योगी कौन सा होगा? जो भक्ति योगी होगा। सो द परफेक्ट योगी and Krishna conscious person engaged in transcendental loving service, there is no difference, ठीक है। perfect yogi engaged in meditation on the super soul, there is no difference between him and the person who is fully engaged in transcendental loving service of Krishna. A yogi in Krishna consciousness, even though he may be engaged in various activity while in material existence, remain always situated in
कृष्णा. अब जैसे द योगी इन कृष्णा कॉन्शियस इवन दो ही मे बी एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज. अब इसका मतलब ये है, अब जैसे आप सभी हैं, मैं भी हूँ, हम लोग भक्ति योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं. वी आर ऑल साधकास, है ना, वी आर ऑल साधकास. सो वी आर एस्पायरिंग डिवोटीज and there are many who are like there are sannyasis, there are brahmacharis, so there are all other ashram devotees are also there. ठीक है, तो सभी भक्त हैं. अब देखा जाए जो भक्ति योगी है वो अलग अलग कार्यों में लगता है. कभी कोई पुस्तक वितरण करेगा, या कई मंदिर परिसर की सफाई करते हैं, कई पुजारी सेवा करते हैं, कई प्रचारक होते हैं, सिर्फ लेक्चर्स देते हैं, कई कीर्तन में होते हैं, दे आर लाइक कीर्तनियास डूइंग द कीर्तन्स, and some are like just playing the instruments, some are just cooking in the kitchen, and some are just traveling around and spreading this harinam, and like that, or some maybe outside world working in corporate sectors, or maybe कोई जॉब करते हैं. ठीक है, तो जो भक्त होता है वो अलग अलग कार्यों में लगा रहता है. माइट बी एनी सर्विसेज, मे बी आउटसाइड वर्ल्ड और इनसाइड कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो बहुत कार्य करता है, बट स्टिल he those seems engaged in many various activity while in material existence is always situated in Krishna. अब जैसे प्रभुपाद का ही इसका बेस्ट उदाहरण मैं आपको दूं. जब प्रभुपाद अपने गृहस्थ जीवन में थे, तो प्रभुपाद इलाहाबाद में थे. हाँ, इलाहाबाद में उनका फार्मेसी का बिजनेस था, मतलब उनका एक बहुत बड़ा फर्म था वहां पे. सो ही वाज देयर. तो इनके जो मित्र थे वो कहते थे, लाइक प्रभुपाद के ही साथ में कई लोग मिलते जुलते थे. उनको दिन में बहुत सारे लोग मिलते थे जिनसे प्रभुपाद बहुत सारी बातें भी किया करते थे, उनको सुनते भी थे. कई एक पर्सन आर्मी से था, कोई पर्सन somewhere else, someone is Muslim. So everybody, people used to come and meet Prabhupada, and Prabhupada used to talk with them. And he was after expanding his business. Prabhupada को था कि उससे मैं अपना business expand करूँ. उनके बच्चे भी थे, पत्नी भी थी. So he was working as a like जैसे हमारे भक्त होते हैं, बाहर काम करते हैं, तो प्रभुपाद भी काम करते थे. तो वो जो प्रभुपाद के जो मित्र थे, थोड़े करीबी थे, इन्होंने क्या कमेंट किया था प्रभुपाद के लिए, बोला था, लगता है ये व्यक्ति पैसे के पीछे इतना पागल है, हर समय सोचता है कैसे प्रॉफिट हो, मुनाफा हो, ऐसा हो, ऐसा हो. बट अगर कोई प्रभुपाद के हृदय की बात जाने, तो he says later on he got to realize कि प्रभुपाद हमेशा, चाहे externally he was engaged so much into material activity, expanding his business, talking with people, कभी मुंडेन बातें होती थी, but in the back of mind he was always, my Guru Maharaj has said me to go to Western world and preach this message of Bhagavad Gita and Bhagavatam in English. ये मैं कब करूंगा? हमेशा प्रभुपाद के मन में वो बात चलता रहता था. बैक एंड पे द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज गुरु महाराज वाज गोइंग ऑन. एंड इवन इवनिंग टाइम वो जब घर आते थे, तो कई साधु वैष्णवों को अपने घर बुलाते थे कि आइए हमें ब्लेस करो, क्योंकि गृहस्थ का जो गृहस्थी है वो तभी प्योरीफाई हो सकता है व्हेन द साधु वैष्णवस आर कमिंग, दे आर गेटिंग प्रसादम एंड ब्लेसिंग देम थ्रू कथा कीर्तना. सो इवनिंग में जब भी घर आते थे, कई साधु वैष्णव को बुलाते थे. दो ही वाज आउटसाइड एंगेज्ड विद सो मेनी पीपल, so many things, but back of the mind all the time the guru's instruction was there, I have to go to Western world and preach there. So all the time the instruction was there, and finally he was able to do that thing because वो instruction चलता रहता था. तो उसी प्रकार जो भक्त होता है, outwardly seems like working in material world, but in the back of his mind he was always chanting the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Or maybe whoever person he meets, he thinks, इस व्यक्ति को मैं कैसे कृष्णा दे सकता हूँ? How I can give Krishna to this person? This is Krishna conscious person's business. You know, आप बेशक भौतिक जगत में भौतिकवादी लोगों से बातें कर रहे हो, मगर मन में हमें यही सोचना चाहिए मैं इससे मिल रहा हूँ. इट्स एन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी जीवा. ये हम सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम कृष्ण भावनामृत में हैं. हम जिससे भी मिलते हैं, चाहे वो हमारा दूध वाला हो, न्यूज़ पेपर वाला हो, या हमारे फ्रेंड हो, या सब्जी वाला हो, भाजी वाला हो, ऑटो वाला हो, बस का कंडक्टर हो, कोई भी हो, तो जो भी हमें मिलता है, हमें ये देखना चाहिए इस व्यक्ति को मैं कृष्ण कैसे दे सकता हूँ या दे सकती हूँ. आप प्रयास करो, या तो उनको प्रसाद दीजिए, या जाते जाते उनको कभी कुछ एक पैम्पलेट दे दीजिए, या एक छोटी किताब दे दीजिए. So always try to give something related to Krishna, and it help them to remember something about Krishna consciousness. ठीक है, तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऐसा करना चाहिए. ये एक भक्त का ये होता है, भक्त जिसके मन में हमेशा बैक एंड में कुछ ना कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस चलता रहता है. That is the devotee. ठीक है, so in that way he is engaged, but he is all the time his consciousness is Krishna conscious, or you can say he is conscious of Krishna. ठीक है. So he says, this is confirmed in Bhakti Rasamrita Sindhu 12187 of Srila Rupa Goswami. I'm sorry if I go little over time. हमने खैर क्लास थोड़ा लेट भी स्टार्ट किया वैसे.
Nikhilashva api avasthasu jivan mukta cha uchyate. A devotee of the Lord always acting in Krishna consciousness is automatically liberated. अब कोई बोले कि मुक्ति पानी है तो हमें ये शरीर छोड़ना पड़ेगा फिर हम मुक्त होके मोक्ष प्राप्त करेंगे, जी नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है। जो भक्त होता है वो यहीं पे इसी समय यहाँ पे ही लिबरेटेड है। क्यों? क्योंकि वो पूर्णतः कृष्ण भावान्वित है। अब उसके पास कर्मा तो है नहीं, एक्शन रिएक्शन है नहीं, तो इज ऑलरेडी लिबरेटेड बिकॉज इज ऑलवेज हिज थॉट्स आर ऑब्जर्व्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है। अब जैसे दामोदर लीला हुआ था तो उसमें ये उदाहरण मैंने बहुत बार पहले भी दिया है। तो जैसे यशोदा माई थी, उन्होंने उस समय भगवा रंग का साड़ी पहना था, दैट इज सैफरन, ठीक है, जिसे हमारे सन्यासी पहनते हैं। सो एंड कृष्णा वाज स्लीपिंग, तो वो बटर को चर्न कर रही थी, वो दही हांडी जैसे जो भी होता है, आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट, वो चर्निंग कर रहे थे। तो शी वाज इन माइंड थिंकिंग अबाउट कृष्णा थ्रू हर स्पीच, शी वाज सिंगिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा एंड through her body she was trying to do some service for Krishna कि मक्खन बनाना है कृष्ण के लिए। So her body, mind and words are engaged in the service of Krishna, thinking about Krishna. So she is a perfect sannyasi. सन्यासी भी तो यही करता है, all the time body, mind, words are engaged in the service of Krishna. So like that she is liberated, you know, being in the same body, being in here, she is liberated. So that is a devotee, you know, devotee यहाँ पे भी भगवान की सेवा में लगा है, तो जब भगवत धाम जाएगा भगवान की सेवा में लगा है। सो कोई अंतर ही नहीं है, वो यहाँ पे भी मुक्त है तो वहां पे भी मुक्त है। तो वैष्णव एज प्रॉपर से, जब मैंने वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के समय में वो लेटर पढ़ा था, तो भक्त के लिए, वैष्णव के लिए ऐसा बोला जाए, ना जीवो वो ना मरो हुआ, कि ना तो ये जिए ना मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये जिए चाहे मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे भी सेवा कर रहे, वहां जाके भी सेवा करेंगे। सो दिस इज डिवोटी, यू नो। सो देन इट इज फर्दर स्टेटेड हियर in the Narada Pancharatra, this is confirmed in this way: Dikkaladi anavachine Krishne chito vidyaya cha tanmayo bhavati shipram jiva brahmani yojayat. By concentrating one's attention on the transcendental form of Krishna, who is all pervading and beyond time and space, one become absorbed in thinking of Krishna and then attain the happy state of transcendental association with him. Now, how you can attain the happy state of transcendental association with him? By observing and thinking about him with the absorption, as I told yesterday also, कि जब हम किसी के साथ प्रेम में होते हैं, जिसको कहते हैं अंधा प्यार, भौतिक जगत में जो प्यार होता है, प्यार कहते हैं प्यार अंधा गूंगा बहरा सब कुछ होता है। सो भौतिक जगत का तो ऐसा ही होता है, लोग देखते नहीं, अंधा गूंगा बहरा ही होता है। सो in the this is in the spiritual platform, when you are in love with Krishna, so your mind is always filled with the thoughts of Krishna, and every time you are able to take shelter of Krishna. अगर ऐसा नहीं कर पाते हो ना, तो I remember मैंने एक बार एक क्लास सुना था देवामृत प्रभु जी का, now he is a भक्ति रसामृत स्वामी, अभी सन्यासी हैं हमारे इस्कॉन में। तो चंडीगढ़ टेम्पल में वो एक क्लास दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने बताया था कि हम भगवान कृष्ण को अपने जीवन में केंद्रित करते हुए कैसे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कहते हैं कि अब जैसे गृहस्थ है, कोई भी घर का खर्चा है तो आप भगवान के पास जाइए, बोलो कृष्णा इस महीने का हमारा ऐसा ऐसा खर्चा है, उनको एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करिए, उनको सामने बताओ, देखो हमारा इस महीने ऐसा खर्चा, यहाँ गया वहां गया, सो लाइक दैट वे। और डोंट आस्क एनीथिंग, जस्ट शेयर द थिंग्स, एंड इफ यू फील समथिंग बैड, go to Krishna and tell Krishna, because Krishna said I am your dear friend. Krishna says ना I am your dear friend. तो आप फ्रेंड के साथ, मित्र के साथ क्या करते हो, डिस्कस करते हो, तो just go and tell Krishna, Krishna this is going on, I'm not feeling good, please give me some intelligence how I can deal. So everything just bring Krishna in middle and talk to him and share with him, or maybe pray to him. So like that way, if you bring Krishna, then it's like he's like your family member, so treat him like a family member, you know. Like एक कथा आता है इसके related, बड़ी funny थी, funny तो नहीं है, but I really love this story. There was a devotee जो भगवान कृष्ण का भक्त था, मगर वो बेचारा बहुत गरीब था, उसके पास पैसा, घर के खर्चा पानी नहीं निकलता था, तो काफी कई बार दुखी हो जाता था। तो उसका एक भौतिकवादी मित्र था, उसने बोला देख तो कृष्ण की पूजा करता है, कृष्ण ने सब ले लिया, तेरा क्या दिया तुझे इतने साल से भक्ति में, देख मैं इधर डेमीगॉड वर्शिप में हूँ, देखो मैं कितना ऑपुलेंस है, सब कुछ है मेरे पास, तो तुम क्यों नहीं डेमीगॉड वर्शिप करते हो, तुम क्यों ये कृष्ण की पूजा में लगे हो, तो करो तुम भी, देखो फिर तुम्हें क्या क्या मिलता है। उसने कुछ तो विचार किया, बोला सही बात है, इतने समय से पूजा कर रहा हूँ, कुछ हुआ तो है नहीं, सब कुछ तो ले गए मेरा, तो कुछ रहा नहीं। तो उसने ले आए देवगणों की मूर्ति ले आए, तो वहां पे उन्होंने उनका फोटो रखा, तो पूजा करने लगे। तो जब धूप चढ़ा रहे थे
तो अब जब धूप चला रहे थे तो धुआं जो था वो कृष्ण की तरफ जा रहा था। उनकी मूर्ति उन्होंने साइड पे कर रखी थी, कृष्ण भगवान का जो फोटो था उसको साइड पे कर रखा था मूर्ति को। कह रहे ये इनकी तरफ धुआं क्यों जा रहा है, इनकी तरफ नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने रुई ली और सीधा उनके नाक में घुसाई, भगवान जो कृष्ण के विग्रह थे उनके नाक में घुसाई कि इनको नहीं जाना चाहिए, ये तो इन देवताओं के लिए, इनके लिए थोड़ी, इन्होंने दिया क्या मुझे। एंड देन इमीडिएटली लॉर्ड अपीयर्स, भगवान उसी टाइम प्रकट हो जाते हैं कृष्ण। कहते हैं ये भक्त काफी अचंभे में होते कि ये आज अचानक से कैसे आ गए। कहते आज तुम्हारी पूजा रोक दी तो आज तुम प्रेजेंट हो गए। कहते नहीं, आज ही तुमने सोचा कि मैं व्यक्ति हूँ, इससे पहले तो तुम मुझे मूर्ति रूप में पूजा करते थे। आज तुम्हें लगा कि मैं सूंघ भी सकता हूँ, तभी तुम रू ये जो रूई है मेरे नाक में घुसा रहे। आज तुमने मुझे एक व्यक्ति के रूप में माना है। तो लॉर्ड इज अ पर्सन, ही इज नॉट समथिंग डीटी और कोई विग्रह या ऐसे फोटो नहीं है, ही इज प्रेजेंट। सो उनको एक पर्सन रूप में आप देखिए। So that's how you can have the association. So like that way, okay. And then try to engage in his service. Like आप जब cooking करते हो तो आप ध्यान में रखो कि भगवान को ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा. Will it be like good for him on like that way. So अगरबत्ती भी खरीद तो ध्यान में रखो कि क्या ये सच में उनको अच्छा लगेगा. जोत जलाते हो so like do it in a very nicer way. If you pick a flower, Krishna will love it ना. He will love it. So do it in that way. Okay. When जब जैसे अभी जैसे वैलेंटाइन आता है तो लोग फूल देते हैं अपने चाहने वालों को, ठीक है, तो पसंद देखते कि क्या पसंद आएगा, कौन सा फूल अच्छा लगेगा। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं हमें देखना चाहिए कौन सा फूल भगवान को अच्छा लगेगा। आज ये वाला चढ़ाऊं, अच्छा कल भी ये दिया था, दूसरा इसमें खुशबू अच्छी आ रही है क्या, हाँ ये वाला लेके जाते हो। सो लाइक दैट वे वी शुड डू, ठीक है। सो दैट शुड बी द मेडिटेशन, ओके। As Aarti Mataji have raised your hand, please wait for a minute. I will listen from all of you. It's just about to end. Okay. So Krishna consciousness is the highest stage of trance in yoga practice. So सबसे बड़ी highest stage कौन सी है trance की? That is Krishna consciousness. ठीक है. So this very understanding that Krishna is present as Paramatma in everyone's heart makes the yogi faultless. तो ये जो understanding है कि परमात्मा हर किसी के हृदय में है, आपको पता है एक reason और है, जब हमारे पैर लग जाता है किसी को तो हम immediately उसको ऐसे बंधन करते हैं. Why we do that thing? Because उसका कॉन्सेप्ट ही है बिकॉज परमात्मा इज इन एवरीवन्स हार्ट एंड दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड। तो इनको अपराध हो गया, हमने कहीं ना कहीं भगवान को ही मतलब ऑब्वियसली दे आर नॉट द लॉर्ड बट दे आर द अंशास ऑफ लॉर्ड एंड परमात्मा इज प्रेजेंट देयर। सो दैट्स हाउ वी जस्ट उनको वंदन करते कि हमारा पैर लग गया इस तरीके से। सो वो रहता है। तो जोगी जब ये समझ पाता है कि हर एक के हृदय में परमात्मा है तो ही बिकम फॉल्टलेस। तो इस तरह क्योंकि वो हर किसी को भगवान के साथ संबंध में देख पाता है ना। जब हर किसी को देखो हमारे हृदय में द्वेष या मित्रता या ऐसा क्यों होता है कि हम समझते हैं कि कुछ कई लोग मेरे मित्र हैं तो कई दुश्मन है। दिस इज ओनली द माइंड गेम। ये माइंड का प्लेटफॉर्म है कि ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय एनिमी, बट एक्चुअल में सभी बराबर ही बराबर इन द सेंस दैट एवरीबॉडी इज लाइक ऑल द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड। सो जब भगवान को जब हम हर किसी जीवात्मा को भगवान के कनेक्शन में देख पाते हैं तो फिर हमारे मन में हृदय में द्वेष नहीं रहता किसी के प्रति भी, ठीक है। सो क्योंकि वी आर सीइंग दे आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड, सो देन द लविंग नेचर इंक्रीजेस। इसलिए जो भक्त होता है, वैष्णव होता है, वो हर किसी के प्रति दयान्वी और प्रेममयी रहता है। वो कभी किसी से द्वेष नहीं करता क्योंकि हर किसी को वो भगवान से रिलेशन में देख पाता है। The Vedas, Gopal Tapana Upanishad 121, confirm this inconceivable potency of the Lord as follow: Eko apisan bahuda yu vibhati. Although the Lord is one, he is present in innumerable heart as many. तो जो कि भगवान हर किसी के हृदय में मगर एक ही है, ठीक है। तो इसे इन द स्मृति शास्त्र इट इज सेड एका इव पारो विष्णु सर्वव्यापी न संशया ऐश्वर्या रूपम एकम च सूर्यवत बहुदेहता। Vishnu is one and yet he is certainly all pervading. By his inconceivable potency, in spite of his one form, he is present everywhere as the sun appears in many places at once. अब जैसे सूर्य है, बेशक टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। अब जैसे जापान में सबसे पहले उगता है, उसके बाद हमारे यहाँ पे दिखता है, फिर किसी और कंट्री में दिखता है, मगर सूर्य तो एक ही है ना, हर जगह पे दिखता है। अब बात अलग है कि समय काल के समय थोड़ा अलग हो सकता है, मगर सूर्य तो एक ही है, हर जगह पे प्रकाश फैलाता है। चांद एक ही हर जगह प्रकाश देता है। उसी प्रकार से भगवान एक ही है, हर किसी के हृदय में है, अलग अलग नहीं है। वो मेरे परमात्मा तो अलग है, तेरे परमात्मा अलग है, ऐसा नहीं है। परमात्मा सभी के एक ही है, दैट इज विष्णु, ठीक है। तो ही इज द वन बट ही इज बिकॉज ऑफ हिज ऑल इनकंसीवेबल पोटेंसी ही इज प्रेजेंट एट वन टाइम, ही इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर, ठीक है। तो ये भगवान की पावर है, तो उस तरह से हम समझ सकते हैं। ओके, सो आई विल स्टॉप हियर, वी हैव सम टाइम, सो नाउ हूएवर वांट टू से समथिंग सो प्लीज गो अहेड। यस आरती माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी माता जी आ रही है, बोलिए। हाँ,
मतलब जी जैसे अभी आपने बोला कि वी हैव टू थिंक इन द सेंस ही इज अ पर्सन, सो आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस कि ही इज अ पर्सन। एक दिन मतलब बहुत ज्यादा दिमाग में चल रहा था कि ही इज अ पर्सन, ही इज अ पर्सन। सो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि लाइक जैसे मतलब ये मेरा ऑफरिंग, फूड ऑफरिंग करने के रिगार्ड में क्वेश्चन है कि जैसे जब हम फूड ऑफर करते हैं तो अभी तो जैसे अभी माइंड स्टेट ऐसा रहता है कि वी वांट टू ईट, दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग एंड देन वी टेक द रेमनेंट। सो लाइक क्वेश्चन मेरा ये है कि हम भगवान का मन कैसे जाने कि कब उनको भूख लग रही है, अब उनको भूख लगती बिकॉज है। ही इज अ माता जी उसके लिए अभी वो स्टेज तो हमारा है नहीं, बट अभी जैसे है, इफ यू आर रियली इनटू वांटेड टू सर्व कृष्णा, आप जैसे आप 3 समय भोजन पाते हैं तो 3 समय आप भगवान को भी खिलाइए, ठीक है। अब ये उस समय मत खिलाइए कि अब जैसे भगवान का जो हमारे मंदिर है इस्कॉन में, वहां पे स्टैंडर्ड होते थे सुबह 4 बजे मंगल आरती के समय खीर खिलाई जाती है, फिर बाद में भोजन का समय होता है 12 बजे भोगा ऑफरिंग होती है, फिर शाम के में भोगा ऑफरिंग होती है। वहां पे तो टाइमिंग है, अब उस तरह से मंदिर वाला तो फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि वहां 5-6 टाइम लगता है। तो आप 3 समय जैसे प्रसाद घर पे पाते हैं तो 3 समय आप प्रॉपर उसी टाइम पे भगवान के लिए भोग बना के तो खिलाइए। मगर ये चेतना मत रखिए कि मुझे भूख लगी है तो अब मैं बना के तो खिलाऊंगा, नहीं। इवन आपको भूख भी नहीं भी लगी है बट स्टिल आप बनाइए क्योंकि भगवान को भोग लगाना है, ठीक है माता जी। जैसे हम एडवांस होंगे वो भी पता चल जाएगा कब भूख लग रही है कब नहीं लग रही है, बट अभी तो हम लोग साधक है तो हमें इतना नहीं पता, ठीक है माता जी। जी 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 माता जी, ओके, थैंक यू सो मच। नो माता जी। ओके, थैंक यू माता जी। मगर ये प्रेम भाव से बनाना है। यू आर अ नाइस कुकिंग इज नॉट इनफ, इट शुड बी विद लव एंड डिवोशन। कोई बोले अरे बड़ा अच्छा खाना बनाया है, बड़ा अच्छा खाना नहीं होना चाहिए, इट शुड, वो तो होना ही चाहिए बट इट शुड बी विद लव एंड डिवोशन विद मेडिटेशन, ठीक है। आप में से कई लोग बहुत अच्छे कुक रहे होंगे, जैसे कोमल माता जी वो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, शी इज अ वेरी गुड कुक। सो कुकिंग वो बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं, बट इट शुड बी विद लव एंड डिवोशन, क्योंकि जब तक वो प्रेम भाव से नहीं आएगा, इट्स Krishna didn't accept it because Krishna says बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं यार पकवान बनाने के लिए, राधा रानी is personally serving Krishna, why he will be after us? So but he's just after our love and devotion, not for the other things, ठीक है। भगवत द्रौपदी क्या दुर्योधन के इतने अच्छे अच्छे पकवान छोड़ दिए, विदुर रानी के जाके केले के छिलके खा लिए। So this is our Lord because he is just after the love and devotion. So always make sure in pure consciousness cook the bhoga with love and devotion for Lord, ठीक है। सो वो चेतना आप जरूर रखिए। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ बताना चाहे प्लीज गो हेड, डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, आप लास्ट मोमेंट के लिए वेट मत कीजिए। सो प्लीज जस्ट गो हेड। यस, इफ नथिंग देन आई विल एंड द मीटिंग। हरे कृष्णा। एनीवन? किसी को नहीं बोलना है कुछ भी, वी स्टिल हैव 5 minutes। हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल माता जी। Yes, as the point is going, like we have to build a personal relationship. तो माता जी जस्ट छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगी कल का। प्लीज बी लिटिल लाउड आस्था Yes. माता जी। माता जी माइक एकदम पास है अभी। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा अपना लैपटॉप अपने बोलिए। जस्ट इफ यू नॉट, अभी आ रही है आपको आवाज अच्छे से? हाँ जी, या हाँ जी, फिर आ रही है, आ रही मैं है। कुछ और ट्राई करूं? जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। तो आप में से ये जो पार्थ, भाविका, पूजा शर्मा, नविता, आप में से किसी को कोई प्रश्न है? एनी ऑफ यू हैविंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेस क्लास और एनीथिंग? नो माता जी, मेरा नहीं है कोई क्वेश्चन। ओके, यस नविता, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं माता जी। कोई क्वेश्चन नहीं है। पूजा माता जी, भाविका? नो माता जी क्वेश्चन। भाविका, डू यू हैव एनीथिंग? Yes, Mataji. यस, प्लीज गो अहेड। Asta, just hold on for a minute. Yes, Bhavika. Mataji, I wanted to ask, like it said that the super soul is in our heart, and Yes. it reminds us, the super soul reminds us that we have to go back to Godhead. So why are some people like non-devotees, like don't they remember, or like They can, why don't they listen and come to this Krishna consciousness? This is the question? yes, Okay. yes, So, Mataji, for this reason, this I can tell you because as we studied previously, the super soul super soul is in everyone's heart, but he manifests to those who are into like study Bhagavatam or associate with saintly person. Actually, super soul
tells everyone. The thing is, when we are into non-devotee things or we are into ignorance, we can't listen that voice. क्या होता है, हमारी आगे जितनी भी और आवाजें होती हैं वो आवाज हम सुन नहीं पाते हैं, और we just ignore it, you know, because of our conditioning we don't listen that thing, and that's how it happens. Otherwise super soul is there to guide everyone. It's not the non-devotee case, Mataji. Even if you see the devotees also, we all are into Krishna consciousness, but how much we are serious about it? Tell me. We are studying Bhagavatam, we are studying chanting also, but how much we are putting ourselves into the proper thing? कितने सालों से हम लोग भी तो practice कर रहे हैं, but how much we are doing? Why to pointing out to non-devotee, but seeing a devotee also, how much we are doing? उनका तो कंडीशनिंग है, मगर हम तो भक्ति में आके सब कुछ जानते हैं, पर उसके बावजूद भी if you don't follow, so what's the reason? We have to look for this thing, you know. So it's obviously it's the conditioning that they're not able to listen, they are not able to get the point, come to the point. And for us also, being in devotee, we have to be very careful. Like though we understand, we हमें तो सब कुछ पता है, मगर उसके बाद भी हम अगर follow नहीं करते हैं, this is the greatest foolishness. So we have to work on ourselves, and if we are pure enough, so we will be able to what we says, we can help other person also to become Krishna conscious. So that is there. That the reason for that question is because of the ignorance, they are not able to, because of the conditioning, they are not able hear the voice of super soul. And for in our case, being a devotee also, if we are not doing, so that means we are also not connecting with super soul in a nicer way. Okay, Yes, Mataji. so take this process seriously. Yeah. Thank you, Bhavika. Yes, Asta Mataji, go ahead. We have 1 minute and 50 seconds. So you need to finish up little early. Yes, Hare Krishna. Mataji, like relationship, what relationship? Like I आवाज नहीं आ रही? Yes, it's coming now, but it's very low.